آج ہم پیدائش کی کتاب اس کے 30ویں 31ویں 32ویں اور 33ویں باب میں سے یعقوب اور عیسو کی ملاقات کی کہانی کو سنیں گے۔ یعقوب کو لابن کے ہاں رہتے اور اس کی خدمت کرتے 20 برس ہو چکے تھے۔ خدا بھی یعقوب سے خوش تھا اور خدا کی برکت سے یعقوب کے پاس سب کچھ تھا۔ اس کے پاس کثرت سے بھیڑ بکریاں، نوکر چاکر، اونٹ اور گدھے تھے۔ یعقوب اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن یعقوب نے لابن کے بیٹوں کی یہ باتیں سنی کہ یعقوب نے ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا اور ہمارے باپ کے مال کی بدولت اس کی یہ ساری شان و شوکت ہے۔ اور یعقوب لابن کو بھی دیکھ کے یہ بات سمجھ گیا کہ لابن کا رویہ بھی اس کے ساتھ پہلے سے بدلا ہوا ہے۔ خدا نے بھی یعقوب سے کہا، تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تب یعقوب نے راخل اور لیا کو میدان میں جہاں اس کی بھیڑ بکریاں تھی بلوایا اور ان سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے باپ کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے، پر میرے باپ کا خدا میرے ساتھ رہا۔ تم دونوں اس بات کو جانتی ہو کہ میں کتنے برس سے تمہارے باپ کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن تمہارے باپ نے مجھے دھوکہ دے دے کر 10 بار میری مزدوری بدلی، پر خدا نے اس کو مجھے نقصان پہنچانے نہ دیا اور مجھے کہا کہ میں بیتیل کا خدا ہوں جہاں تو نے زیتون پر تیل ڈالا اور میرے حضور دعا کی، پس اب اٹھ اور اس ملک سے نکل کر اپنے باپ کے ملک میں لوٹ جا۔ تب راخل اور لیا نے اسے جواب دیا، کیا اب بھی ہمارے باپ کے گھر میں کچھ ہمارا بکرا یا میراث ہے؟ کیا وہ ہم کو اجنبی کے برابر نہیں سمجھتا؟ بس جو کچھ خدا نے تجھ سے کہا وہی کر۔ تب یعقوب نے اٹھ کر اپنے بال بچوں اور بیویوں کو اونٹوں پر بٹھایا اور اپنے سب جانوروں اور مال و اسباب کو جو اس نے اکٹھا کیا تھا، یعنی وہ جانور جو اسے فیدان ارام میں اجرت میں ملے تھے، لے کر چلا تاکہ ملک کنعان میں اپنے باپ اسحاق کے پاس جائے۔ اور لابن اپنے بھیڑوں کی پشم کترانے کو گیا ہوا تھا، سو راخل اپنے باپ کے بتوں کو چرا لے گئی اور یعقوب لابن ارامی کے پاس سے چوری سے چلا گیا کیونکہ اسے اس نے اپنے بھاگنے کی خبر نہ دی، سو اپنا سب کچھ لے کر بھاگا اور دریا پار ہو کر اپنا رخ کوہ جلاد کی طرف کیا۔ اور تیسرے دن لابن ارامی کو خبر ہوئی کہ یعقوب بھاگ گیا، تب اس نے اپنے بھائیوں کو ہمراہ لے کر 7 منزل تک اس کا پیچھا کیا اور جلاد کے پہاڑ پر اسے جا پکڑا۔ اور رات کو خدا لابن ارامی کے پاس خواب میں آیا اور اس سے کہا کہ خبردار، تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ اور لابن یعقوب کے برابر جا پہنچا اور یعقوب نے اپنا خیمہ پہاڑ پر کھڑا کر رکھا تھا۔ لابن نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جلاد کے پہاڑ پر ڈیرا لگا لیا۔ تب لابن نے یعقوب سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا کہ میرے پاس سے چوری سے چلا آیا اور میری بیٹیوں کو بھی اس طرح لے آیا گویا وہ تلوار سے اسیر کی گئی ہیں؟ تو چھپ کر کیوں بھاگا اور میرے پاس سے چوری سے کیوں چلا آیا اور مجھے کچھ کہا بھی نہیں؟ ورنہ میں تجھے خوشی خوشی طبلے اور بربط کے ساتھ گاتے بجاتے روانہ کرتا اور مجھے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو تو نے چومنے بھی نہ دیا۔ تیرے باپ کے خدا نے کل رات مجھے یوں کہا کہ خبردار، تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ خیر، اب تو چلا آیا تو چلا آیا، کیونکہ تو اپنے باپ کے گھر کا بہت مشتاق ہے، لیکن میرے بتوں کو کیوں چرا لایا؟ تب یعقوب نے لابن سے کہا، اس لیے کہ میں ڈرا، کیونکہ میں نے سوچا کہیں تو اپنی بیٹیوں کو جبرن مجھ سے چھین نہ لے۔ اب جس کے پاس تجھے تیرے بت ملے وہ جیتا نہیں بچے گا۔ تیرا جو کچھ میرے پاس نکلے اسے ان بھائیوں کے آگے پہچان کر لے لے، کیونکہ یعقوب کو معلوم نہ تھا کہ راخل ان بتوں کو چرا لائی ہے۔ چنانچہ لابن یعقوب اور لیا اور دونوں لونڈیوں کے خیموں میں گیا، پر اس کو بت کہیں نہ ملے۔ تب یعقوب نے غضبناک ہو کر لابن کو ملامت کی اور یعقوب لابن سے کہنے لگا، میرا کیا جرم اور کیا قصور ہے کہ تو نے اس طرح میرا پیچھا کیا؟ تو نے جو میرا سارا اسباب ٹٹول ٹٹول کر دیکھ لیا، تو تجھے تیرے گھر کے اسباب میں سے کیا چیز ملی؟ اگر کچھ ہے تو اسے میرے اور اپنے ان بھائیوں کے آگے رکھ کہ وہ ہم دونوں کے درمیان انصاف کریں۔ میں پورے 20 برس تیرے ساتھ رہا، نہ تو کبھی تیری بھیڑوں اور بکریوں کا گھاپ گرا اور نہ تیرے ریوڑ کے مینڈے میں نے کھائے۔ جسے درندوں نے پھاڑا میں اسے تیرے پاس نہ لایا، اس کا نقصان میں نے سہا۔ جو دن کو یا رات کو چوری ہو گیا اسے تو نے مجھ سے طلب کیا۔ تیرا حال یہ رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی۔ میں 20 برس تک تیرے گھر میں رہا، 14 برس تک تو میں نے تیری دونوں بیٹیوں کی خاطر اور 6 برس تک تیری بھیڑ بکریوں کی خاطر تیری خدمت کی، اور تو نے 10 بار میری مزدوری بدل ڈالی۔ اگر میرے باپ کا خدا ابراہیم کا معبود جس کا روب اسحاق مانتا تھا میری طرف نہ ہوتا تو ضرور ہی تو مجھے اب خالی ہاتھ جانے دیتا۔ خدا نے میری مصیبت اور میرے ہاتھوں کی محنت دیکھی ہے۔ تب لابن نے یعقوب کو جواب دیا کہ یہ بیٹیاں میری اور یہ
लड़के भी मेरे और ये भेड़ बकरियां भी मेरी हैं, बल्कि जो कुछ तुझे दिखाई देता है वो सब मेरा ही है। सो मैं आज के दिन अपनी ही बेटियों से या उनके लड़कों से जो उनके हुए क्या कर सकता हूँ। बस अब आ कि मैं और तू दोनों मिलकर आपस में एक अहद बांधे और वही मेरे और तेरे दरमियान गवाह रहे। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसे सैतून की तरह खड़ा किया और याकूब ने उस जगह का नाम जलाद रखा। लाबन ने कहा कि जब हम एक दूसरे से गैर हाजिर हों तो खुदावन मेरे और तेरे बीच निगरानी करता रहे। अगर तू मेरी बेटियों को दुख दे और उनके सिवा और बीवियां करे तो कोई आदमी मेरे साथ नहीं है, पर देख खुदा मेरे और तेरे बीच में गवाह है। तब याकूब ने वहीं पहाड़ पर कुर्बानी चढ़ाई और अपने भाइयों को खाने पर बुलाया और उन्होंने खाना खाया और रात पहाड़ पर काटी। और लाबन सुबह सवेरे उठा और अपने बेटों और अपनी बेटियों को चूमा और उनको दुआ देकर रवाना हो गया और अपने मकान को लौटा। और याकूब ने भी अपनी राह ली और खुदा के फरिश्ते उससे मिले और याकूब ने उनको देखकर कहा कि ये खुदा का लश्कर है। उस जगह का नाम महानीम रखा। और याकूब ने अपने आगे कासिदों को अदूम के मुल्क को जो शहीर के सरजमीन में है अपने भाई ईसू के पास भेजा और उनको हुक्म दिया कि तुम मेरे खुदाउन ईसू से ये कहना कि आपका बंदा याकूब कहता है कि मैं लाबन के यहाँ मकीम था और अब तक वहीं रहा और मेरे पास गाय बैल और गधे और भेड़ बकरियां और नौकर चाकर और लौंडियां हैं और मैं अपने खुदा के पास इसलिए खबर भेजता हूँ कि मुझ पर आपके कर्म की नजर हो। बस कासिद याकूब के पास लौट आए और कहने लगे कि हम तेरे भाई ईसू के पास गए थे, वो 400 आदमियों को साथ लेकर तेरी मुलाकात को आ रहा है। तब याकूब नहायत डर गया और परेशान हुआ और उसने अपने साथ के लोगों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊंटों के 2 गोल किए और सोचा कि अगर ईसू एक गोल पर आ पड़े तो उसे मारे तो दूसरा बचकर भाग जाएगा। और याकूब ने कहा, ए मेरे बाप इब्राहिम के खुदा और मेरे बाप इसहाक के खुदा, ए खुदावन जिसने मुझे ये फरमाया कि तू अपने मुल्क को अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ भलाई करूंगा। मैं सिर्फ अपनी लाठी लेकर इस यरदन के पार गया था और अब ऐसा हूँ कि मेरे 2 गोल हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे मेरे भाई ईसू के हाथ से बचा ले, क्योंकि मैं उससे डरता हूँ कि कहीं वो आकर मुझे और बच्चों को माँ समेत मार ना डाले। और वो उस रात वहीं रहा और जो उसके पास था उसमें से अपने भाई ईसू के लिए ये नजराना लिया, 200 बकरियां और 20 बकरे, 200 भेड़ें और 20 मेंढे और 30 दूध देने वाली ऊंटनियां बच्चों समेत और 40 गायें और 10 बैल, 20 गधियां और 10 गधे। और उनको जुदा जुदा गोल करके नौकरों को सौंपा और उनसे कहा कि तुम मेरे आगे आगे पार जाओ और गोलों को जरा दूर दूर रखना। और उसने सबसे अगले हॉल के रखवाले को हुक्म दिया कि जब मेरा भाई ईसू तुझे मिले और तुझसे पूछे तू किसका नौकर है और कहाँ जाता है और ये जानवर जो तेरे आगे आगे हैं किसके हैं, तू कहना ये तेरे खादम याकूब के हैं। ये नजराना है जो मेरे खुदावंद ईसू के लिए भेजा गया है और वो खुद भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे को और गोलों के सब रखवालों को हुक्म दिया कि जब ईसू तुमको मिले तो तुम यही बात कहना और ये भी कहना कि तेरा खादम याकूब खुद भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। उसने ये सोचा कि मैं इस नजराना से जो मुझसे पहले वहां जाएगा उसे राजी कर लूं, तब उसका मुंह देखूंगा वो यूं मुझको कबूल करे। चनाचे वो नजराना उसके आगे आगे पार गया, पर वो खुद उस रात अपने डेरे में रहा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यबूक के घाट से पार उतारा और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार बेच दिया और याकूब अकेला रह गया। और उस वक्त एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई और उसने कहा कि मुझे जाने दे। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने पूछा कि तेरा क्या नाम है? उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। याकूब ने उस जगह का नाम फेनियल रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। और जब वो फेनियल से गुजर रहा था तो आफताब तलू हो चुका था। याकूब ने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 400 आदमी यीशु के साथ चले आ रहे हैं। तब उसने लिया और राखल दोनों लोंडियों को बच्चे बांट दिए और लोंडियों और उनके बच्चों को सबसे आगे और लिया और उसके बच्चों को पीछे और राखल और यूसुफ को सबसे पीछे रखा और वो खुद उनके आगे आगे चला और अपने भाई के पास पहुंचते पहुंचते 7 बार जमीन तक झुका और यीशु उससे मिलने को दौड़ा और उससे बगल गिर हुआ और उसे गले लगाया और चूमा और वो दोनों रोए। फिर उसने आंखें उठाई और औरतों और बच्चों को
को देखा और कहा कि ये तेरे साथ कौन है। उसने कहा ये वो बच्चे हैं जो खुदा ने तेरे खादिम को अनायत किए हैं। तब याकूब ने यीशु को बहुत सा नजराना पेश किया और उसे मजबूर किया कि उसे कबूल कर ले। सो यीशु ने याकूब का दिया हुआ नजराना कबूल किया। तब यीशु ने याकूब से कहा कि अब हम कूच करें और चल पड़ें और मैं तेरे आगे आगे हो लूंगा। तब यीशु उसी रोज उल्टे पांव शहीर को लौटा और याकूब सफर करता हुआ सकात में आया और अपने लिए एक घर बनाया और अपने चौपायों के लिए झोंपड़े खड़े किए। ये थी याकूब और यीशु की मुलाकात की कहानी। इस कहानी में हम देखते हैं कि खुदा याकूब के साथ था और खुदा ने उसके हर काम में बरकत दी और हर तरह से उसे बरोमंद और सरफराज किया। खुदा की याकूब के लिए जो मर्जी थी उस मर्जी को खुदा ने याकूब की जिंदगी में पूरा किया और फिर उसे कनान के मुल्क में वापस लाया। और जो दूसरी बात हम सीखते हैं वो ये है कि राखल ने अपने बाप के बुतों को चराकर जो कुछ किया वो खुदा की मर्जी के खिलाफ था। वो इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि याकूब जिंदा खुदा को मानता है और याकूब और उनकी जिंदगियों में जो भी बरकत और नेमत है वो सब खुदा की तरफ से है। फिर भी उसने ऐसा किया। और फिर हम देखते हैं कि जब लाबन अपने बुतों को ढूंढने के लिए आया तो याकूब ने कहा कि जिसके पास भी बुत हों वो जीता नहीं बचेगा। वाकई इस बात ने राखल का पीछा किया और बनियामीन के पैदाइश पर वो रास्ता ही में वफात पा गई। आज भी बहुत सी ऐसी जिंदगियां हैं जो पुरानी आदतों को नहीं छोड़ती और इन्हीं लाहनतों और कबाहतों के साथ ही खुदा के साथ चलना चाहती हैं, पर खुदावंद इस बात को पसंद नहीं करता। उसने तो हमारी हर किस्म की लाहनतों और कबाहतों को दूर कर दिया है और हमें मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दिया है। इसलिए हम जो मसीह के लहू के वसीला से रास्तबाज ठहरे हैं कभी भी अपनी जिंदगियों से शैतान को मौका ना दें कि शैतान खुश हो और हम सब कुछ जानते बूझते हुए भी खुदा की पाक रूह को रंजीदा करें। और तीसरी बात जो हम सीखते हैं कि जब याकूब ने ये सोचा कि उसके भाई के साथ 400 आदमी हैं और वो याकूब पर हमला कर देंगे तो वो खुदा के हुजूर झुका और खुदा से दुआ की और फिर वाकई यीशु खुशी और मोहब्बत के साथ याकूब से मिला। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को जरूर शेयर करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।